Hello, dear students. BJMC 6th semester. The paper we were covering out is radio and television. And today I have to start up with the lecture 3 of this. The topic that is to be covered is essential production techniques. Means in the radio, what are the essential production techniques are there which is being used while production? What are the things, what are the techniques are being done? So first of all we will cover writing for ears. Now here writing for ears in this radio production is what? Writing words to be heard by an ear is quite different from words to be read by an eye. Natural है जो भी words हम सुनते हैं that is quite different which the words we are reading through an eye. जो हम आँखों से पढ़ते हैं वो शब्द अलग होते हैं और जो हम सुन रहे हैं वो अलग है. So the layout of the sentence, their order and construction has to be thought through in order to be totally clear and unambiguous at their first hearing. जो एक layout structure होता है radio production का while performing या while making your sentence, तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है like constructions of your sentences throughout an order and that should be totally clear at your first hearing. पहली बार में जो भी एक ऑडियंस आपकी सुन रही है एज अ लिसनर, तो वो किस तरीके से आपको पहली बार में आपके वर्ड्स को कैच कर रही है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So the listener does not automatically have the possibility of rehearing something. Natural है जब एक live production चल रहा है रेडियो पे and radio jockey is just talking you people. So at that time it's not necessary or it's not build up कि like कोई भी चीज़ है उसको हम दोबारा सुन सकें because the live telecast is going on. So in that production area, the listener do not have automatically possibilities to hear something again and again. The person will have to listen it once at a time. इसीलिए जो भी एक रेडियो जॉकी होता है that has to be perfect with his words because the listeners will not listen you again and again your words. It must make sense first time. And this plays a special responsibility on the radio writer. Now what happened? The first sense means as I told you जो भी एक listener है उसको पहली बार में ही catch करने होते हैं सारे words because nobody is listening the radio again and again and nobody is speaking it again. So the place of this special responsibility on the radio writer, a person, a radio jockey who is writing a script. His script or her script should be actual, holding content and totally clear. So whether we are writing a 15-minute talk, a 1-minute voice piece or a cue to a recorded interview, the basic rules of radio writings and the pitfalls need to be very simply stated. So this is all for understanding you, making you that in what form we can make a script formation. Then writing for the ear means what? There are basic things that you have to keep in mind being as a radio jockey. So take the listener to the scene of the story. Now just understand, if you are explaining any of the story, so you have to make your listener, आपको अपने listener को इमेजिनेशन में ऐसे लेके जाना है कि वो वाकई में उस स्टोरी को समझ रहा है और देख भी पा रहा है. बिकॉज रेडियो इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर द लिसनर, वेयर योर ऑडियंस इज ओनली लिसनिंग टू यू, दे आर नॉट एट ऑल वॉचिंग यू. सो यू हैव टू बी मेक सच अ सेंस क्लियर ऑफ योर स्टोरी that a listener should imaginate the story of your. So let them hear when you are and allow the natural sound to infiltrate the piece. Reports record a minute of sound in a room to be woven like a music bed under their voice during narration.
And for example, when a Toronto's move more overhead, I record the sounds of the siren wailing, wind rustling through the trees, and pattering of the rain against the pavement as a way of setting the scene for the listener. जब हम कोई भी एक हॉरर स्टोरी अगर हम वर्चुअली सुना रहे हैं रेडियो पे, तो व्हाट सीन्स वी हैव टू क्रिएट फॉर द लिसनर्स? कुछ इफेक्टिव साउंड्स, wind rustling through the trees, या पेंटलिंग ऑफ द रेन अगेंस्ट एनी साउंड ऑफ द घोस्ट. सो कुछ ऐसे ऐसे साउंड वॉइस निकालने होते हैं so that the listener should enjoy your story. Then the second point that we have to keep in mind is use your voice. Your intonation, inflection, and emphasize approximately place the listener in the room with you. So your voice should reflect the mood of the piece. आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो एक रिफ्लेक्ट करे आपकी स्टोरी को, जहाँ पे एक एज अ लिसनर ऐसा फील करे कि वो व्यक्ति आप ही के साथ आपके रूम में. तो ही शुड और शी शुड फील, योर लिसनर शुड फील कि येस यू आर देयर अलॉन्ग विद हिम एंड टेलिंग द स्टोरी. सो दैट शुड बी अ रिफ्लेक्शन इन योर वॉइस. Then next is that paint a picture. Now use the most descriptive words you can think of in your script. आपको अपने स्क्रिप्ट में इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लगाने होते हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं या रीराइट करने होते हैं so that a picture in the mind of the listener should be created. एक जो पिक्चर है एक लिसनर के माइंड में क्रिएट हो जाए. Avoid using the pronouns when more nouns tell the story with greater accuracy. So that should have to be keep in mind while writing the script. स्क्रिप्ट लिखते वक्त आपको अपनी इमेजिनेशन स्टोरी की या जो भी आप बताना चाह रहे, डिस्क्रिप्टिव करना चाह रहे हो, उसके शब्द ऐसे होने चाहिए कि दैट शुड पेंट अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ द लिसनर. The next thing, use the active voice. Don't tell us what previously happened when you can describe what currently going on. Instead of saying, right, Prime Minister Narendra Modi remarked earlier that today for the lockdown. No, we have to say that Prime Minister says that every state to follow the lockdown. तो पहले की टिप्पणियाँ ना देते हुए, उसको डिस्क्राइब ना करते हुए, हमें आज के बारे में डिस्क्राइब करना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है. पहले क्या हुआ, दैट इज़ नॉट टू बी रिमार्क्ड फॉर द अर्लियर, बट वी हैव टू सी द टुडे सिचुएशन. तो आज की सिचुएशन को देखते हुए क्या ऐलान होता है, उन सब चीज़ों को हमें डिस्क्राइब करना होता है इन सच एक्टिव वॉइस कि पीपल शुड फील कि हाँ कोई चीज़ इमेजिनेशन नहीं है, पुरानी नहीं है. जो कुछ भी एक डिटेल में एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव वे में जो भी चीज़ बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच है और हमें उसे फॉलो करना है. सो दीज वर द टेक्निक्स दैट हाउ यू हैव टू मेंटेन, और यू कुड से इट्स अ टाइप ऑफ what the ear are referring to. So you have to keep in mind that writing for the ear, आपको कानों के लिए लिखना है और कैसे लिखना है उन सारी चीज़ों के बारे में ये पूरा समझाया गया. Now here are 5 ways you can write for the ears, not the eye. अब 5 तरीके जो है हमें देखने हैं. सबसे पहले यूज़ शॉर्ट वर्ड्स. ऐसे छोटे शब्दों का यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो लेकिन इम्प्रेसिव लगे, लोग उसे समझें और उन वर्ड्स के हिसाब से अपनी चीज़ों को कर सकें. सो बिग वर्ड्स साउंड्स इम्प्रेसिव, बट मल्टी सिंबॉलिक वर्ड्स आर रियली एज गुड एज देयर सिंपलर counterparts when writing for the ear. Now, Winston Churchill, one of the writers, has said that short words are the best and old words when short are the best.
ऑफ ऑल। जो छोटे शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमेशा हमें अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए, अपनी राइटिंग के लिए, जो हमें गानों के लिए बेसिकली लिखना है, वो हमेशा छोटे होने चाहिए और इम्प्रेसिव होने चाहिए। देन यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता एक चलते फिरते व्यक्ति के पास कि वो आपकी पूरी बात बैठ कर के सुने। इसलिए राइटिंग जब हमें करनी है फॉर द रेडियो स्क्रिप्टिंग के लिए, तो उस टाइम पे हमें अपने सेंटेंस को जितना छोटा कंप्रेसिव हो सके उतना छोटा रखना है। तो शॉर्ट सेंटेंसेस आर मोर इम्पैक्टफुल देन द लॉन्गर वन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज इफ़ यू हैव रिटन एनी ऑफ द सेंटेंस और वो कंसिस्ट करता है आपका 39 to 40 वर्ड्स का, एंड सेकेंड वर्ड with the same attention consists of only 20 words. So their good reason, the most memorable line from the famous speech are short, rarely exceeding 20 words. तो ये हमें चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती हैं लिखते समय कि बहुत कंप्रेसिव हो और एक मीनिंगफुल हो। देन एवरीडे वर्ड्स, रोज़ इस्तेमाल किए जाने शब्द हमें कैसे लिखने हैं, कैसे उसमें एक्सप्रेस करने हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो वन सेमिनल स्टडी फाउंड दैट द एडल्ट्स कैन अंडरस्टैंड 96% ऑफ ऑल द स्पोकन लैंग्वेज विद अ वोकैबुलरी ऑफ जस्ट 2000 वर्ड्स। Although the most native English speakers know thousands more than tend to use the same limited pool of the words in conversation. And when speaking to the general audience, you should too. तो जो भी हमें शब्द अपने बोलने हैं, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ऐसे शब्द बोलने हैं कि जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। कुछ नए शब्द अगर हम बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर नए शब्द का मतलब हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को पता हो। इसलिए हमें शब्द ऐसे ही बोलने हैं जो सबसे ज़्यादा ऐसे वोकैबुलरी टर्म में यूज़ होते आ रहे हैं और जिनका मीनिंग सबको पता हो, कॉमन हो एक तरीके से। सो योर कन्वर्सेशन विल बी ईजियर विथ योर ऑडियंस। देन यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ बेरिंग द मोस्ट फॉर्मल स्पीच, oral delivery requires the use of the contractions do not or I will work for best for the eye, don't and I will work for the ear. So this kind of words delivering speeches use are for the barriers. तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो oral conversations में होते हैं, do not and I will, तो ये पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, आई विल को हम आइल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बैरिंग, तो फॉर्मल स्पीच के लिए होते हैं और इतने टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करना भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो हमारी आइज़ को सूट कर रहा है वो हम लिखते हुए वक्त लिखेंगे कि डू नॉट डू दिस, आई विल गो टू, लेकिन हमें अपने रेडियो के लिए लिखना नहीं है, हमें अपने रेडियो पे बोलना है। और बोलते वक्त हम जो अपने मुंह से शब्द बोलते हैं वो इतने स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि हमने अपनी स्क्रिप्टिंग पे क्या लिखा, बट अपने वर्ड्स को इतना स्क्रिप्टफुल बनाना है कि जब हम बोल रहे हैं तो सुनने वाला उस चीज़ को समझे। पूरा बोलेंगे डू नॉट तो दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड टू द ईयर। डू नॉट की जगह हम डोंट भी बोल सकते हैं, आई विल की जगह आई विल भी बोल सकते हैं। सो दैट विल सूट्स टू अवर ईयर, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। देन स्पीक दैम अलाउड। नेचुरल है, जब हमें अपने मैसेज को ड्राफ्ट करना है, अपने रीडर, अपने ऑडियंस तक, अपने लिसनर्स तक पहुंचाना है, तो वी हैव टू रीड दैम सो लाउड, और थोड़े प्रोनाउंसिएशंस हार्ड करने होते हैं सो दैट इट शुड बी गिविंग अ गुड रिजल्ट टू द ऑडियंस। सो इफ एनी वन ऑफ देम कंटेन अ वर्ड दैट डज नॉट रोल ईजिली ऑफ योर टंग, रिप्लेस इट विद वन दैट डज। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी एक वर्ड, बहुत अर्जेंट मैसेज है जो हमें ऑडियंस तक, अपने लिसनर्स तक पहुंचाना है,
तो उसको हमें एक बहुत स्टाइलिश फॉर्म में और बहुत लाउड मोड में हमें बोलना होता है, सो दैट द लिसनर्स शुड बी अलर्ट एंड अटेंटिव। तो ये थे हमारे 5 तरीके जो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कानों के लिए, क्योंकि रेडियो में जो हमें बोलना होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट द पीपल आर लिसनिंग टू अस, सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो बोलते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि वट एवर द लिसनर्स आर स्पीकिंग दैट आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर द 5 ways that you can write for the ear but not for the eyes। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द स्पोकन लैंग्वेज फॉर रेडियो प्रोडक्शन। अब हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, क्या लैंग्वेज हमें रखनी चाहिए जो एक रेडियो प्रोडक्शन में यूज़ होती। सो रेडियो रिलाइज मेनली ऑन द वर्बल कोड्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स एंड दिस मे सीम स्ट्रेंज फॉर द मीडियम दैट gave the world the top 40. Andrew Krasel says he's one of the speech, or you could say a speaker for the radio, and he said in his speech that on radio that sets music and sound in context and gives them their final meaning। तो जो एक स्पोकन लैंग्वेज है फॉर द रेडियो प्रोडक्शन का, दैट शुड बी इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए और उसके संग म्यूज़िक साउंड्स होना चाहिए जो उसको एक फाइनल मीनिंग देता है। द कोड ऑफ द रेडियो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक एंड साइलेंस। रेडियो लैंग्वेज का कोड है क्या? नेचुरल है, उसका कोड है ऐसे कुछ शब्द, टेक्निकल वर्ड्स जो कानों को बहुत अच्छे लगे, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स, सॉन्ग्स, और कभी कभी चुप्पी भी बहुत अच्छी लगती है कि मतलब आपने बोल दिया और आप पॉज हो गए, तो जो आपकी ऑडियंस हैं, जो लिसनर्स हैं, जब वो सुन रहे हैं आपको, तो दे वर वंडरिंग कि हुआ क्या, व्हाट हैपन, सो सडनली यू अपीयर। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ वेरी rational and they are very important for the codes of radio language. So these are shared to some extent with the television and film also, but radio use them rather than different ways। ये सब चीज़ें हालांकि टीवी में भी यूज़ होती हैं, लेकिन जो रेडियो है वो एक अलग तरीके से ही उसे यूज़ करता है, क्योंकि हमें अपने ऑडियंस को सुनाना है, दिखाना नहीं है। तो इस वजह से जब हमारे ऑडियंस हमको सुन रहे हैं तो उनके कलेक्शन में इट शुड बी क्वाइट डिफरेंट, अब उनका तरीका अलग होना चाहिए, और जो उनके वर्ड्स हैं, अपने साइंस एंड सिंबॉलिक कोड्स हैं टू कम्युनिकेट मीनिंग, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड अटेंटिव। तो वर्ड्स ऑन द रेडियोज आर स्पोकन। So the spoken words in radio comprises derived formats such as straight talk, सीधे तरीके से हम बात करे जा रहे हैं, फिर अचानक से हमने कभी किसी का इंटरव्यू ले लिया, या फिर किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, या डायलॉग्स बीच बीच में मारे जा रहे हैं, एक टॉकिंग शो चला दिया, क्विज़ शो चला दिया, बुक रिव्यू किसी चीज़ का, फिल्म रिव्यू किसी चीज़ का, या कमेंट्रीज एक्सेट्रा, सॉन्ग डेडिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है रेडियो पे, so that the listeners are always active and they love to listen. Their news bulletins are also spoken words presenting through the news format and are progressively getting featured, implying that more and more actuating records। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक स्पोकन लैंग्वेज के लिए हमें रेडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। So being as a radio journalist, one has to keep in mind, keep all this in thought कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है for the spoken language or a spoken word। Then we are moving to the narration। Narration means किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को, अपने स्क्रिप्ट को प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस तक, अपने लिसनर तक, क्या तरीका है नरेट करने का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेडियो के लिए। So narration in radio drama, since radio is a blind medium, natural है
रेडियो जो है एक ब्लाइंड मीडियम है, वो देख नहीं रहा है आपको, उसमें से लोग आपको निकल के देख नहीं रहे हैं, नेचुरल है, वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सुनते हैं. सो नरेशन कैन फंक्शन एज द ऑडियंस सीइंग आई डॉग, setting the scene, conveying the action and provide the exhibition. जिस तरीके से एक डॉग आई होती है जो आपको कहीं ना कहीं किसी तरह छुप करके देख रही है, तो हमें एक अज्यूम करके चलना है कि जो भी एक चीज़ बताई जा रही है वो एक इमेजिनेशन के थ्रू हमें सेटिंग ऑफ द सीन क्रिएट कर दी है. कन्वेइंग द एक्शन, जब हमने एक्शन बोला किसी चीज़ का, तो वो एक इमेजिनेशन बन के ऑडियंस के दिमाग में, लिसनर्स के दिमाग में आ जाता है. And providing the exposition. So it sure saves the time and elevation confusion that can cause listeners to give up and tune out. So script writing should be very specific. Speak instead of writing, as you are going to be reading it. Your help keep your script natural sounding. तो स्क्रिप्टिंग हमेशा हमें एक नेचुरल साउंडेड में रखनी चाहिए. The way that we are formally read and write is usually much stiffer than how we speak. तो लिखते वक्त अपनी स्क्रिप्ट में जो हमें अपनी आवाज़ देनी है, with a flow of your mind, that is very must. तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें बोलना है, और वही हमारी स्क्रिप्ट है, तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है. तो इसलिए जो नैरेटिव है, इट हैज़ टू कीप इन माइंड कि हमें बोलना क्या है, हमारे शब्द क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी टेक्निक्स क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्योंकि कानों के लिए करना है. देन गिव योर सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी. एक नरेटर को अपने अंदर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम राइटिंग अ स्क्रिप्ट एज इफ इट्स गोइंग टू बी स्पोकन अलाउड. जब आप तेज़ तेज़ बोलते हैं अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डायलॉग्स को, तो इफ़ देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट यू वांट टू यूज़ ऑन एयर, include them on your script. So similarly, there are the certain stories, news, pieces, topics, etc. that you want to talk about on air. So include them on your script as well. कुछ शब्द, कुछ डायलॉग्स जब हम अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करते हैं क्योंकि हमें ऑन एयर बोलना है, तो ठीक इसी तरह हमें कुछ सर्टेन स्टोरीज़ भी अपने माइंड में रखनी चाहिए, कुछ न्यूज़ टॉपिक्स भी दिमाग में रखनी चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसी हिसाब से हमें एक एज अ रेडियो में प्रेजेंट करना होता है. एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द नैरेटर. So that you want to talk about on, include them on the script as well. They also give yourself the different options for the vocabulary, stories, news topics, and the spaces to explore that what you are particularly interested in taking about the moment which you are live telecasting, you're broadcasting it. So something जो एक broadcast हो रहा है वो natural है कि कितना ऑथेंटिक है, कितना रियलिटी से भरा पड़ा है, और क्या क्या चीज़ें जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी एफर्टनेस है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो बीइंग एज अ नरेटर, वन शुड हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड मेक योर टोन, मेक योर साउंड सो मोमेंटम कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है रेडियो पे, वो जब लोग सुनते हैं तो दैट शुड बी वेरी प्रेजेंटफुल. एंड सो योर स्क्रिप्ट गिव योर सेल्फ ओनली दैट वॉट यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ दैट फ्रीडम. नाउ द नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक, नॉट द लास्ट बट स्टिल, साउंड इफ़ेक्ट्स. साउंड इफ़ेक्ट्स क्या होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना रेडियो अधूरा है. तो साउंड इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एंगेज ऑडियंस. नेचुरल है, जब आप कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जब आप कुछ बोल रहे हो और पीछे से कोई एक साउंड इफ़ेक्ट आती है, तो वो क्या करता है, वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको एक मोमेंट देता है कि वाओ समथिंग हैपन्स, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, एंड द पर्सन स्टार्ट इमेजिनेशन. So it helps the deliver information, it increase the production value, it evokes the emotional response, it emphasizes that what on the screen and used to be indicate mood. जैसा कि बताया अभी
तो वो सारी चीज़ें होती हैं एक इमेजिनेशन के रूप में। एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों को पसंद होता है, इसलिए वो एक इंडिकेशन मूड को इम्प्रेस करता है। साउंड इफ़ेक्ट बहुत वैल्यूएबल होता है। तो it is an artificially created and enhanced sound process used to emphasize the artistic and other content of the films, television shows, live performance, animations, video games, music and other media. तो इन हर चीज़ों में कहीं ना कहीं साउंड इफ़ेक्ट्स का बहुत ज़्यादा वर्जन चला हुआ है। और कुछ पॉपुलर साउंड इफ़ेक्ट्स जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव करते हैं वो आर लाइक क्राउड साउंड इफ़ेक्ट्स, war sound effect, game show sound effect, train sound effect, or scary sound effect, funny sound effects, doorbell sound effects, Star Trek sound effects. So these were so many sound effects are there जो बहुत इम्प्रेसिव होते हैं और जो आपके लिसनर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मूड भी उनका अच्छा कर देते हैं. Then we are moving to the next topic, that is the ad-libbing. ad-libbing क्या होता है रेडियो में? एक ये टेक्निकल टर्म है जो रेडियो में यूज़ किया जाता है. सो रेडियो इज़ द होल अदर वर्ल्ड विद इट्स ओन लैंग्वेज, जो अपने ही भाषा को समझता है रेडियो में. तो रेडियो में कोई देख तो रहा नहीं है, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं. तो उसके जो भी एक टेक्निकल टर्म्स है, देयर आर मैनी टर्म्स एंड फ्रेजेस regularly used in radio industries. So here is one important term, that is ad-libbing. Now ad-lib or ad-libbing is what when a presenter improvise. जब कोई भी प्रेजेंटर होता है, कोई भी एक आरजे होता है, जब वो इम्प्रूव कर रहा होता है और इम्प्रोवाइज करते वक्त जो एक कॉमन प्रैक्टिस करते वक्त when something goes wrong, जब कोई चीज़ गलत हो जाती है, कोई शो आप कर रहे हो और शो करते वक्त कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो गया या फिर कोई एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई, तो वहाँ पे एड लिविंग की ज़रूरत होती है. एक वो प्रेजेंटर इम्प्रोवाइज़र है कि आप जब आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम से ऐड डाल दिया, कहीं टेक्निकल इश्यूज़ आ गए रेडियो में तो वहाँ पे ऐड डाल दिया. So that is the ad-libbing. Okay. So this is all for today, and I hope that everyone has understood about what are the essential production techniques which we are doing, and where we have to keep in mind कि writing for the ears especially, not for the eyes, because हम जो रेडियो के लिए कर रहे हैं उसमें हमको सिर्फ लिखना है, वो भी बोलने के लिए. तो जब हम कुछ बोलते हैं तो नेचुरल है वो सिर्फ हमारा लिसनर सुन रहा होता है, हमें देखना नहीं है. तो राइटिंग फॉर द ईयर्स, देन स्पोकन लैंग्वेज, नरेशन, साउंड इफ़ेक्ट्स एंड ad-libbing, ये कुछ 5 एसेंशियल टॉपिक्स हैं फॉर द प्रोडक्शन टेक्निक्स which are very important, and I have completed this unit 1 today with this lecture. So all our students are please requested to read it very carefully and understand it. Okay, that's all for today. Thank you, class.